Hello everyone. Hope you all are doing good. You are happy and healthy and wish you a very happy new year 2021. I'm sure you all must have made a number of resolutions for this year and you must be full of enthusiasm and excitement, and including me, we all are wishing that this year proves to be much better than our last year. But to your surprise, my today's video topic is instead based on the last year, that is year 2020, and the topic of my video is the learnings from the year 2020. Before I begin talking about the video further, let me ask you that have you subscribed to my YouTube channel yet? If no, then please press the pause button for a second, go to my YouTube channel by the name Sapna Agarwal Motivation and subscribe to my channel. You can also press on the bell icon. Also, you can follow me on my Instagram page by the same name and Facebook page as well. Now let's continue with the topic, that is the learnings from the year 2020. ये जो हमारा लास्ट ईयर 2020 रहा है, इसमें हमने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं. सो जस्ट हैविंग अ फ्लैशबैक ऑफ द ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने इस ईयर में देखा, दैट वी आर गोइंग टू एसोसिएट दिस ईयर बाय द पैंडेमिक और द वायरस कोविड-19. जो ईयर 2020 है वो इसी नाम से जाना जाएगा कि इस ईयर में एक वायरस आया था कोविड-19 नाम का, जिसने हमको बहुत ही अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया है. कुछ हमारी लर्निंग्स रही हैं, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं. मेजरली मोस्ट ऑफ देम वर द बैड एक्सपीरियंसेस वी हैड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस वी हैड वाज द लॉस ऑफ लाइव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दुनिया में बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई इस वायरस की वजह से. और दिस वायरस डिडंट सी that how much educated you are, what is your profession, what is your status, what is your background, what is your riches, how much wealth do you have, how much bold you are. Nothing it saw. इसके रास्ते में जो भी आया इसने उसको अटैक किया, and mostly it took the lives of most of the people. So this is one of the worst and first experience I could say of the year 2020 is that the loss of lives of many people all over the world. Second, I can say कि सिर्फ इसने लोगों की जान ही नहीं ली, इसने हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत हैम्पर किया, क्योंकि इस वायरस की वजह से काफी सारे लोगों ने अपनी जो जॉब्स हैं उनकी जॉब चली गई, बिजनेस शटडाउन हो गए, एंड इन शॉर्ट आई कैन से ओवरऑल जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा हैम्पर हुई है all over the globe because of this pandemic. So the class which got affected the most during this economic shutdown was the daily wage earners, because they have to earn daily and they have to feed themselves and their families on daily basis. So they were affected the most during this economic shutdown. Then the next experience I would say of the year 2020 was in the field of education system. ये जो आज हम online classes ले रहे हैं, ये first time introduce हुई थी because of this pandemic, and it was definitely a new experience both for the teachers and the students. राइट, ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा है. ऑनलाइन क्लासेस से पहले इन अ डिफरेंट वे रही होंगी, बट नॉट एज अ कंपल्सरी सिस्टम, और द यू कैन से कि जो हमने इतना थॉरोली इस चीज को सीखा है, बच्चों ने स्टडी थ्रू ऑनलाइन क्लासेस एंड टीचर्स दे हैव बीन लर्निंग सो मेनी थिंग्स. At both the ends there have been a new great learning. So the system introduction of these online classes was one of another great experiences out of year 2020, and it was a new experience. Instead, I would say, instead of saying great experience or not, it is a new experience. Other than this, इसके अलावा एक जो एक्सपीरियंस हमने किया year 2020 में, जो हमें नहीं पता दोबारा कभी होगा या नहीं, was the फ्री टाइम, एम्पल ऑफ टाइम, बिकॉज इनिशियली द लॉकडाउन जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें मोस्ट ऑफ द जॉब्स वर टर्न होम बेस्ड, और घर से काम करने की वजह से वी गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली मेंबर्स. तो इस वजह से पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल कुड स्पेंड सो मच ऑफ टाइम विद देयर फैमिलीज. तो दिस वॉज अगेन द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस. इसके अलावा जो हमारा इस पूरे साल 2020 में यूज ऑफ सैनिटाइजर्स और मास्क है, ये भी हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले हमने कभी मास्क यूज नहीं किया था. सैनिटाइजर्स इन अ वे वी कुड से दैट हाँ, यस, समटाइम वी यूज्ड इट, बट नॉट बिकॉज ऑफ नेसेसिटी. इट वॉज यूज्ड सिचुएशन बेस्ड, राइट. तो जो हमारा सैनिटाइजर्स और मास्क का यूसेज है
वो हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है ऑफ 2020 बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. अदर देन दिस, चलो लेट्स ऑल्सो इंक्लूड सम ऑफ द लर्निंग्स. हमने क्या सीखा इस इंसिडेंट से, तो हम अब एक्सपीरियंस और लर्निंग साथ में कंबाइन करते हैं. बिकॉज इट इज सेड दैट एवरी इंसिडेंस इन आवर लाइफ, जो भी कुछ होता है, कुछ भी हादसा नहीं होता है, एंड एवरीथिंग हैज लर्निंग बिहाइंड इट. हर इंसिडेंट से हम कुछ सीख सकते हैं. सो डू वी रियली लर्न एनीथिंग आउट ऑफ दिस? यस, वी लर्न. द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज दैट नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस वर्ल्ड. आप ये नहीं कह सकते कि यही फिक्स है, यही होगा आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद. इवन यू कैन नॉट अश्योर फॉर द नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए. बट दिस थिंग अफेक्टेड अस ग्लोबली. पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लाइफ में तो हमारे साथ किसी के साथ कुछ भी हो ही सकता है, पर ग्लोबल लेवल पे भी anyone could be affected anytime. There is no certainty, so don't take things for granted. तो ये हमारी फर्स्ट लर्निंग है. सेकेंड आई वुड से इज दैट वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इन लाइफ, पर हर चीज कंट्रोल में हो जाए वो जरूरी नहीं है, एज यू कैन सी. एंड स्पेशली डोंट थिंक दैट यू कैन कंट्रोल इट इमीडिएटली, बिकॉज this pandemic, this virus took us a lot of time, and still we are going through the trials and everything, but still we cannot say that yes we have controlled it fully. So don't try to control everything, or don't think कि हर चीज आपके कंट्रोल में है. This pandemic has taught us this, कि हर चीज, इंसान चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे वो अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट समझे, पर हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं हो सकती. स्पेशली इमीडिएट बेसिस पर तो नहीं हो सकती. दे माइट टेक सम टाइम टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, सो दे आर नॉट द स्मार्टेस्ट. Another learning from year 2020 was, as I have already mentioned in my earlier videos as well, जब इंसान को लगने लगा कि वो इस प्लैनेट का बॉस है, मोस्ट पावरफुल है, फाइनेस्ट स्पीशीज है. Yes, we are. हम हैं. The supreme power has made us the most intelligent species on this planet, but not for being cruel towards our coexisting species. जो हमारे साथ और भी लिविंग स्पीशीज है, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, उनके प्रति हमें कंपैशनेट होना है. We have to be kind towards them. But since last few years, human beings are, they have been kind of cruel towards them. They have been destructing the nature. तो नेचर ने अपना खुद का तरीका चुना और एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिसमें जो बाकी लिविंग स्पीशीज हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, दे वर फ्रीली रोमिंग आउटसाइड. वो बाहर आराम से घूम रहे थे विदाउट एनी फेयर, एंड हम एक कैदी की तरह पिंजरे में बंद थे, स्पेशली इन द इनिशियल फेज ऑफ द लॉकडाउन. अभी भी वी आर एडवाइज टू स्टे एट होम अंटिल इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू स्टे सेफ. बट हाँ, एक फेस हमने वो देखा है when we were threatened to go out, like we were afraid, we were scared of going out because of this pandemic virus. So नेचर ने प्रूव कर दिया कि आप को एग्जिस्ट कर रहे हो बाकी लिविंग स्पीशीज के साथ, आप बॉस नहीं हो. सो दिस इज अनदर ग्रेट लर्निंग ऑफ द ईयर 2020. One another very important lesson that we learned in the year 2020 was health is wealth. ये कहावत हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि हमारी सेहत ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अनमोल चीज है. पर हमने इसको लास्ट ईयर रियलाइज किया जब हमने देखा कि कई लोग, चाहे वो हमारे नियर बाय हमारी फैमिली से हों, चाहे हमारे आंखों के सामने किसी और इंडस्ट्री के हों, बड़े सेलिब्रिटीज हों, हमने उनको देखा कि किस तरह द वे दे लॉस्ट देयर लाइव्स. दो दे हैड so many facilities, they had wealth, they have number of things they can afford, but still they lost their lives. Why? Because उनकी health ने उनका साथ नहीं दिया. So it is really important that first of all to live a happy life and to be prepared for any contingency in your life. आपको सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो बिलीव मी आप कुछ भी कर सकते हैं. और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपके पास भले ही दुनिया की सब चीजें अवेलेबल हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो, बहुत पैसा हो, आपने सारी सब कुछ, आपके पास सर्विसेज हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, बट अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो इफ यू आर नॉट हेल्दी, अगर आप सेहतमंद नहीं है तो आप किसी भी चीज का मजा नहीं ले सकते हैं लाइफ में. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आई थिंक ऑफ 2020 वॉज आवर हेल्थ, that we should learn to be healthy. We should have a healthy regime. हमारा एक सेहतमंद रूटीन होना चाहिए. We should have good healthy habits, and
we should pay utmost attention to our health. That was another great learning of 2020. टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ, वी वेरी वेल नो, हम सबको पता है कि हमें कैसे सेहतमंद रहना है, अच्छा खाकर, एक्सरसाइज करके और अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रख के। पर इस पैंडेमिक के दौरान ईयर 2020 में हमने एक चीज और बहुत अच्छी सीखी कि कई बार ऐसा हमने देखा कि कई सारे लोग थे जो सेहतमंद थे, फिर भी उनको इस वायरस ने अटैक किया। क्यों? देयर इम्यूनिटी लेवल्स वर गुड, they were healthy, they had no medical history, but still they were attacked, and even some of them lost their lives. Why? Because they had low mental immunity. उनकी जो मानसिक इम्यूनिटी थी, रोगों से लड़ने की क्षमता थी, वो बहुत कम थी। तो इस फेस में हमने एक चीज और सीखी, मैनी ऑफ अस मूव टू द स्पिरिचुअल पाथ। हम में से कई लोगों ने मेडिटेशन को अपनाया, हम लोगों में से कई लोगों ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाया, जिसमें कि हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है। क्योंकि अगर इसमें स्पिरिचुअलिटी में हमें ये भी सिखाया जाता है कि हमारी बॉडी में खुद ही एक हीलिंग सिस्टम होता है। सो इफ वी बिलीव इन दैट एंड इफ वी अगर हमने उसको एक्टिवेट कर रखा है सेल्फ हीलिंग सिस्टम को, तो आधी प्रॉब्लम्स, आधी से ज्यादा बीमारियां वहीं खत्म हो जाती हैं। तो इस दौरान 2020 ईयर में, इस पैंडेमिक के दौरान काफी सारे लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, मेडिटेशन को अडेप्ट किया, एंड दे फॉलोड मेनी ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग योगा, मेडिटेशन एटसेट्रा, and they build their mental immunity, which is equally important as the physical immunity. Another learning of this year was the level of digitalization. जो चीजें हम इस 2020 से पहले सब कुछ कैश में डील करते थे, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, चाहे वो आपके वेंडर्स हों, वो सब हम कैश में डील करते थे। बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द वायरस वी लर्न टू बी मोर डिजिटल। हमने काफी कुछ चीजें ऑनलाइन करनी सीखी। मीन्स मोस्टली इवन द टी वेंडर्स, दीज वेजिटेबल वेंडर्स जो सब्जियां बेचते हैं, जो चाय देते हैं, उन सब ने डिजिटलाइजेशन में एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। उन सब ने ऐसे ऐसे अलग अलग जो ट्रांजैक्शंस के मोड्स होते हैं ऑनलाइन, वो सब सीखे। तो दिस वाज अगेन अ वेरी गुड लर्निंग, आई वुड से, विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ओवरऑल। कि आप जब डिजिटलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करते हैं तो इट इज ऑल्सो अ मार्क ऑफ इम्प्रूवमेंट और द डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। अदर देन दिस, बिकॉज पीपल गॉट अ लिटिल मोर टाइम during this pandemic as compared to they would have got during their normal lives, तो they could follow their passion. उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, कई लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया, उन्होंने अपने फ्री टाइम में नई चीजें सीखी, या जो वो करना चाहते थे, काफी टाइम से सोच रहे थे, वेदर इट मे बी रिलेटेड टू देयर हेल्थ रेजीम, चाहे उनको एक्सरसाइज करना हो या उनका कोई भी आर्टिस्टिक पैशन हो, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, राइटिंग, रीडिंग। तो इस ईयर 2020 में उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लर्निंग रही कि वो अपने पैशन को ज्यादा टाइम दे पाए। बिकॉज ऑफ द शटडाउन्स ऑफ सम ऑफ द सिस्टम्स, दे गॉट मोर टाइम एट होम, और उस वजह से कई लोगों ने इस टाइम को यूटिलाइज करके, अपने पैशन को फॉलो करके, दे मूव टू अ स्टेप फर्दर टुवर्ड्स देयर गोल। उन्होंने कुछ अच्छा भी लर्न किया है कई लोगों ने इस टाइम को यूटिलाइज करके। सो डेफिनेटली इट वॉज अ गुड लर्निंग ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. So I have shared my views about my learnings from year 2020. If you think I have missed out on any point, then you are most welcome. You can just leave a comment on my YouTube channel in the comment section. On this note, let's keep learning each day. Let's take care of our health, and remember, life is unpredictable. Not everything happens to our plans we make. So let's not be too serious about it. And instead, let's have a combination of little hard work, little sincerity, honesty, love, care, and warmth in our relationships. So I'll see you next time. Bye bye. Take care.